Namaste, everyone. Great to see all of you here. We are delighted to welcome our mentor, our team member, Dr. Jeevan Lal Gandhi, who is like a father and a guru to me. He has been teaching how people can remain healthy by sticking to a natural diet for the past 50 plus years. He has helped 4 lakh, 400,000 people who have come to him after going to many different places and not being able to get relief. They came to him and he has been able to successfully help them. So we have asked him to come and share his experience as to how he has helped many people and some of the misconceptions we have regarding proteins, because there are lots of misconceptions and misunderstandings we have about proteins. Proteins are a necessary part of our diet, but how much protein is enough? What kind of protein we should eat? Is going on a purely protein diet good for us? All of these things we contemplate, or these questions come to our mind from time to time because we hear about all kinds of things. So some of these misconceptions we would like Dr. Gandhi to throw some light on and share his experience about these things with us. So welcome, Dr. Gandhi. Dr. Jivanlal Gandhi is in his late 80s, but you cannot suspect that because he's so energetic and such a role model for all of us. So delighted you are here. Namaste, and I'm eager to listen to you. Dr. Gandhi, please. Okay. Thanks, Vikram. Am I audible and visible? Yes, sir. Yes. Okay. So I'm really happy this evening to be with you all people, Sattva loving means who are in search of perfect health of body and mind. And instead of thanking, I would say that on this diet, I am really delighted to be here with you because as Vikram has told you in my giving you my yes, introduction that I am like his father. So I am really very glad what I have been trying for last 55 years to teach the people that through diet alone we can maintain our health, which is an ideal example of it. So that gives me immense pleasure to be with you all this evening. So, not wasting much time on other aspects, I will straightway go to the subject today, that is protein, which is the most disputable, confused, and there are everywhere disagreements about the protein foods. Not only proteins, if we see two people of the same branch, same pathy, they are not sure about what is the right diet and proper diet. Their all attention is tackling to symptoms, and that way it is all on medicine. So this subject has been unfortunately neglected, and especially I come from medical school only. I remember it was not taught to such an extent which now I understand it. So this, you see, biochemists, nutritionists, and all physicians, even physicians of different pathies, they don't have one answer. They will differ everybody. There should not be any difference of opinion about diet because diet is our medicine. This is the father of modern medicine has said it, Hippocrates. So अब मैं हिंदी में कहना चाहूंगा क्योंकि
कुछ हिंदी कुछ ऐसा इस तरह से बात करूंगा। प्रोटीन के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे डाइट का फैक्टर है, इसके बारे में थोड़ा हम अच्छी तरह से सोच लें और समझ लें तो अकेले इस एस्पेक्ट को कंट्रोल करने से हम कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं। और उसी हिसाब से प्रोटीन क्या है, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में संभ्रम क्या है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमें बताया गया है और हम सभी जानते हैं कि हमारी डाइट जो है, हमारा जो आहार है वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस इसका मतलब ऐसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आदि न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से हो। तो प्रोटीन एक घटक है हमारे आहार का, लेकिन सबसे ज्यादा उसके बारे में गलत फहमियां और संभ्रम सभी में उपस्थित है। केवल हम में ही नहीं, लेकिन सभी चिकित्सकों में भी संभ्रम है। तो प्रोटीन जो है, इसके बारे में कई तरह के अभी रिसर्च हो चुके हैं, परंतु अधिकतर रिसर्च जो किए गए वो एनिमल्स पर किए गए, कैट्स है, डॉग्स है, इस पर। और वो रिसर्च के अनुसार प्रोटीन की हमारी मात्रा कितनी होनी चाहिए, प्रोटीन कैसा होना चाहिए, इन बातों को कहा गया है। जबकि एम्पेरिकल जो एविडेंस है, जैसा इन्होंने बताया, पिछले 50-55 साल का मेरा अनुभव है पेशेंट्स के साथ, और उन पर मैं पाया कि प्रोटीन का सही उनको आहार देने से, प्रोटीन की सही मात्रा में देने से उनकी बीमारियां कैसे ठीक होती है। तो आज मैं यही बताना चाहूंगा कि प्रोटीन हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन उसका दूसरा जो भाग है, पार्ट है, वो है प्रोटीन कैन बी बॉडी किलर ऑल्सो। और ऑलमोस्ट ऑल डिजीजेस, सो कॉल्ड इनक्यूरेबल डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, arthritis, diabetes, we find the role of protein wrongly suggested. So let us go ahead and see. We have two types of protein. One is animal protein, and another is plant protein or vegetable protein. अक्सर ये मान्यता है कि एनिमल प्रोटीन जो है, मांसाहारी, मांस जो है, मांस, अंडा, मछली, ये कंप्लीट प्रोटीन है। तो हम ये देखेंगे ये कंप्लीट है या नहीं है, या कैसा है। तो एक तो एनिमल प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन इस तरह से किया जाता है। तो ये माना जाता है कि एनिमल प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन का अर्थ क्या? हमारे प्रोटीन के माध्यम से हमारे शरीर में 22 एमिनो एसिड बनते हैं, 22 एमिनो एसिड। और वो एमिनो एसिड हमारे हेल्थ के लिए फाउंडर स्टोन्स होते हैं, कॉर्नर स्टोन्स हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि रीजनरेशन, रिपेयर का काम प्रोटीन ही करता है। और हमारे शरीर के हर सेल का अंश प्रोटीन ही होता है। तो ये जो प्रोटीन है, ये कंप्लीट उसको कहते हैं कि जिसमें 9 तरह के प्रोटीन जो है एमिनो एसिड के हमारे शरीर में बनते नहीं है, वो हमें आहार के द्वारा लेने होते हैं। और उसके 13 जो दूसरे विभाग है एमिनो एसिड से, वो शरीर स्वयं बनाना जानता है। तो शरीर का ये रोल है कि हम उसको सही ढंग से आहार लें, या सही ढंग से रॉ मटेरियल दे, तो आगे का जो हेल्थ बिल्डिंग मटेरियल है वो अच्छी तरह से बन सकता है। तो प्रोटीन से 22 एमिनो एसिड बनते हैं। अब प्रोटीन से एमिनो एसिड बनते हैं, इसके बाद फैट से 9 फैटी एसिड बनते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से भी बनते हैं। तो जितने भी ये हैं, ये एसिड बनते हैं। तो हमारे शरीर में एसिड क्यों होते हैं? शरीर के अंदर हमारा रक्त का जो संतुलन है वो 80% अल्कलाइन एंड 20% एसिडिक होना चाहिए। तो एसिड हमें जरूरी है।
लेकिन 20% से अधिक जब हमारे शरीर में हम लेना शुरू कर देते हैं किसी तरह का ये जो आहार, एसिड बनाने वाले खाद्य पदार्थ है, इनका सेवन करने से, तो बीमारियां होना शुरू हो जाती है। और शरीर के अंदर जो है, इसमें सबसे महत्व का जो है कि ऐसा बताया जाता है कि एनिमल प्रोटीन जो है, ये कंप्लीट प्रोटीन है, लेकिन इसका दूसरा जो है भाग हम वो देखते हैं, वो ये है कि ये मोस्ट डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा, इट इज मेजर कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स दैट वी आर वेरी वेल अवेयर। तो फिर हमें ये सोचना है कि अगर हमें ये प्रोटीन नहीं तो कौन सा लेना चाहिए। तो प्लांट प्रोटीन जो है वो हमारे लिए सबसे उत्तम होता है। हाई प्रोटीन डाइट अक्सर ये माना जाता है और कहा जाता है, यहाँ तक कि बीमारियों में भी ये कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। अभी कोरोना में भी ये बताया जा रहा है कि हाई प्रोटीन डाइट जब भी किसी को कोरोना आता है तो दी जाती है। तो हाई प्रोटीन डाइट का मतलब क्या है? हमारे शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है, पहले हम इस पर विचार करें। प्रोटीन के बारे में हर 5 या 10 साल से उसकी आवश्यकताएं बदलती जा रही है। सबसे पहले तो ये मानना था कि 200 to 300 ग्राम पर डे प्रोटीन होना चाहिए। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव हुआ, कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस भी आए, तब ये माना गया कि प्रोटीन 120 से 200 तक होना चाहिए। और अब पिछले 10 वर्षों में ये मान्यता सभी मानने लग गए और दूर हो चुकी है कि हमारे शरीर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है केवल 20 to 30% पर डे है। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर अधिक हो जाती है, हम अधिक प्रोटीन लेते हैं, या ये जो भी आहार है, अच्छा आहार भी सही ढंग से अगर नहीं लिया जाए तो बीमारियों का कारण होता है। प्रोटीन ये उसका सर्वोत्तम उदाहरण है। वैसे तो सभी अन्न है, तो प्रोटीन अधिक लेने से क्या होता है, इसको अगर हम समझ लें तो ये बात और अच्छी तरह से समझ में आएगी कि अधिक प्रोटीन लेना या नहीं लेना, या कितना प्रोटीन लेना, एनिमल लेना या वेजिटेबल प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन लेना। तो सबसे पहला तो प्रोटीन जो है सबसे जल्दी फर्मेंट और प्यूट्रीफाई होता है बॉडी में। अगर हम ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो शरीर के अंदर जाकर के वो फर्मेंट होता है और उसके साथ प्यूट्रीफाई होता है। और जब फर्मेंट और प्यूट्रिफिकेशन किसी भोजन का होगा तो उससे टॉक्सिन्स निर्माण होते हैं। टॉक्सिन्स निर्माण होने के बाद हमारे शरीर के अंदर आंतों में जो एक बैक्टीरियल संतुलन रहता है, जिसके कारण हमारा आरोग्य बना रहता है, तो वो सारे के सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसके बाद प्रोटीन अगर ठीक से नहीं डाइजेस्ट हुआ तो इसके द्वारा यूरिक एसिड, यूरिया, सोडियम बायूरेट, प्यूरिन्स बनते हैं, ये फेनॉल, कीटोल, ये भी बनते हैं। तो ये जो प्रोटीन के बाय प्रोडक्ट्स है, ये अगर 20% मात्रा में रहे तो बीमारी नहीं होगी। शरीर उतना बराबर उसका मेटाबॉलिज्म के लिए यूज कर करके बाद में बचा हुआ बाहर कर देता है। लेकिन ये जब अधिक हो जाते हैं तो इससे बीमारियां होती हैं। इससे किडनी डिजीजेस हो सकते हैं, इससे आर्थराइटिस होता है, ये मानी हुई बात है। और इतना ही नहीं है तो करीब करीब सभी तरह की बीमारियां जो है, सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक, सारी प्रोटीन अधिक लेने के कारण होती है। ये मेरा स्वयं का पिछले 50 वर्ष का अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर और कुछ साइंटिफिक वर्ल्ड जो कहती है उसके आधार पर मैं ये कहूंगा कि अगर हम अधिक प्रोटीन लेते हैं और उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो कई बीमारियां होती है। अगर प्रोटीन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम ही अपसेट हो जाती है, जिसके माध्यम से फूड हमारे लिए अमृत के समान होना चाहिए, दवा के समान होना चाहिए, वही सिस्टम बिगड़ जाती है और उसमें गैस्ट्राइटिस है, हाइपर एसिडिटी है, कोलाइटिस है, इस तरह की बीमारियां आना शुरू हो जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। तो
प्रोटीन ही नहीं, कोई भी फूड अगर फर्मेंट और प्यूट्रीफाई होता है एक लिमिट के ऊपर, तब जाके बीमारियां पैदा करता है। और जब वो बीमारियां होती है तो हम ये एस्पेक्ट कंसीडर ही नहीं करते हैं कि आहार के द्वारा ये कैसे हुए हैं, और केवल दवाओं पर आधारित उपचार के तरफ जाते हैं, और ट्रीटमेंट लेने वाले भी और देने वाले भी इसकी विशेष सोच नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरह से समझ लें तो आहार ही औषधि है, ये सही तरह से हमारे लिए अनुभवी जन्य हो जाएगा। अब प्रोटीन के बारे में और एक मान्यता ये है कि प्रोटीन जो है ये पक्व लेना या अपक्व लेना, तो पका हुआ लेना चाहिए, ऐसा सभी जगह कहते हैं। मीट है, ये है, सब हम पका हुआ लेते हैं। और प्रोटीन, मीट, इनके एनिमल प्रोटीन के अलावा वेजिटेबल प्रोटीन जो है सभी दालों में है, जितनी भी दालें हैं, पल्सेस जितनी है सब में है। उसके बाद सीड्स में सभी हैं और नट्स में है सभी। तो हमें प्रोटीन जो हम ले रहे हैं वो उबाला हुआ प्रोटीन लेते हैं, और ये पाया गया है, ये इस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। यहाँ तक कि रैट्स और कुत्ते और बंदरों पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उसमें ये पाया गया है कि रॉ प्रोटीन देने पर उनको, उनके शरीर में ये एसिड की अधिकता नहीं होती और बीमारियों के कारण नहीं बनते हैं। तो रॉ प्रोटीन जो है, यहाँ तक कि मांसाहारी जो प्राणी है, जैसे ये कैट्स है, इनको दिया गया, ये पाया गया, और जब उनको कुक्ड प्रोटीन दिया गया तो कोई न कोई बीमारी के चंगुल में आ गए। तो रॉ प्रोटीन सबसे महत्व का होता है। अब हमारे फूड्स में, सभी फूड्स में प्रोटीन है। प्रकृति ने हमारे लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है, इसलिए एक न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट ने कहा है, अवर क्रिएटर नेचर इन हिज विजडम नोइंग हाउ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स आर फॉर मैन एंड एनिमल मेड देम पार्ट ऑफ every naturally occurring food, every plant, all vegetables and all fruits and every seed contains protein। और ये जो नेचुरल प्रोटीन है, ये पिछले कई वर्षों में इस पर पूरी तरह से ये हो रहा है, और जिन्होंने इसके अनुसार इसके प्रयोग किए, उन्होंने पाया कि बीमारी नहीं है तो उनका स्वास्थ्य उन्नत हुआ है, बीमारी है तो बीमारी ठीक हो गई है। तो रॉ प्रोटीन और नेचुरल प्रोटीन का मतलब क्या है? फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है ये सबसे ज्यादा अच्छे प्रोटीन के माध्यम है। हम दाल ही मान बैठे हैं, हम प्रोटीन में एक खाद्य जो है दालों के अलग अलग तरह का, एक तरह की दाल ही इसी को मानते हैं, लेकिन प्रोटीन सभी तरह की दालों में है, और एक किसी खाद्य पदार्थ से प्रोटीन मिलता नहीं, इसलिए हमें सभी तरह की दालें लेनी पड़ती है। लेकिन ये पाया गया है कि दालों का प्रोटीन तो बहुत कम मात्रा में लगता है, लेकिन वेजिटेबल और फूड्स का प्रोटीन जो है ये सर्वोत्तम है। वेजिटेबल और फूड्स के प्रोटीन के द्वारा एसिड्स बिल्कुल निर्माण नहीं होते, और प्रोटीन का जो रोल है, मेंटेनेंस, रिपेयर, रिजेनरेशन, रिक्यूपरेशन, ये सारे के सारे कैरी ऑन होते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल ये बताया गया है, और मैंने कईयों को ये सब प्रयोग किया है, पाया कि निश्चित रूप से ये लाभकारी है। अब इसके बाद प्रोटीन कितनी बार और कितना लेना चाहिए डेली? तो प्रोटीन को 30 ग्राम तक ज्यादा से ज्यादा, और ये बिल्डिंग ब्लॉक है, तो जो 50 के ऊपर है उनको तो और भी कम लेना चाहिए, क्योंकि 50 तक प्रोटीन हमारे शरीर का जो निर्माण, नवनिर्माण होना है वो सब हो जाता है, और 50 के बाद फिर हमें प्रोटीन की आवश्यकता ही कम होती है। तो प्रोटीन जो है ये हमें धीरे धीरे कम लेना चाहिए और डेली लेने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन के बारे में ये पाया गया है कि ये कहते हैं कि भाई प्रोटीन शरीर के अंदर कई तरह से खराबी होती है, या हम फ्रूट्स वेजिटेबल की अगर डाइट लेते हैं
यहाँ तक अन्न की भी नहीं लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी आकर के कई तकलीफें हो सकती है। लेकिन पिछले कई वर्षों में फास्टिंग, जो टोटली वाटर फास्टिंग या जूस फास्टिंग करते हैं, उन पर इसके प्रयोग किए गए हैं और ये पाया गया है कि प्रोटीन के द्वारा हमें पूरे जो शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन वो मिलते हैं और किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। विशेषतः वाटर फास्टिंग, लॉन्ग फास्टिंग जिन्होंने किया है, उनका प्रोटीन, बायोलॉजिकल प्रोटीन देखा गया कितना है प्लाज्मा के माध्यम से, तो ये पाया गया कि प्रोटीन में कोई कमी आई नहीं। तो ये जो भ्रम है हमारा कि भाई हमें प्रोटीन नहीं लेंगे तो प्रोटीन शरीर का कम हो जाएगा, ये कम है। इसके विपरीत ये पाया गया कि फास्टिंग के बाद उनके शरीर के अंदर जो वेस्ट सेल्स थे, जो टॉक्सिक सेल्स थे, उन सेल्स का जब रिसाइकलिंग होकर के वो वापस डाइजेस्टिव सिस्टम में आया, तो उनमें का प्रोटीन भी शरीर काम में ले आता है। तो इस तरह से ये जो भ्रम है कि अधिक प्रोटीन लेना चाहिए, इससे परे हमको सही मात्रा में सही ढंग से लेना चाहिए और डेली दाल लेना, डेली प्रोटीन लेना जरूरी नहीं है। तो प्रोटीन के बारे में ये महत्वपूर्ण बात है। और प्रोटीन के बारे में एक और देखिए कि कहाँ से प्रोटीन मिलता है, केवल इसी से नहीं मिलता। हम देखते हैं घोड़ा है, हाथी है, इनको कहाँ से मिलता है? ये सारा वेजिटेरियंस है। तो वेजिटेबल किंगडम जो है या जो प्लांट बेस्ड आहार है, ये सर्वोत्तम प्रोटीन का आहार है। तो इसका अगर हम सही ढंग से उपायोजन करना जान ले, तो हमारे शरीर की प्रोटीन की आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाती है। अब इसके बाद दूसरा एक जो डाउट, जो भ्रम है, वो है कि दूध लेना बहुत जरूरी है, चाहे दूध गाय का हो या भैंस का हो। दूध ये एनिमल प्रोडक्ट है। पिछले अनेक वर्षों में इसके बारे में भी ये पाया गया कि इसके सेवन से सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक सारी बीमारियां होने की संभावना होती है। तो इसका कारण क्या? इसका महत्व का कारण यही है कि दूध जो है ये बछड़े के लिए बनता है। बछड़ा जो 50 किलो का होता है, साल भर में 200 का हो जाता है, उसके ग्रोथ के लिए बनता है। उसमें जो हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन, एक तो मनुष्य को चाहिए, उससे कई गुना अधिक मात्रा में है। अगर हम वो ले लेंगे तो हार्मोन्स अगर हम ले लेते हैं, दवा के रूप में भी जब लेते हैं, तो हम चिकित्सकों को भी विचार करना पड़ता है कि हार्मोन्स अधिक मात्रा में न दिए जाए। तब ये होता है कि अधिक हार्मोन्स लेने के कारण जो दुष्प्रभाव होते हैं वो त्वरित मालूम नहीं होते। कईयों में तो बचपन में ही पता चल जाता है, लेकिन कईयों को कुछ वर्षों बाद बीमारियां आना शुरू होती है। तो उसका कारण ये मिल्क सही में पाया गया है। दूसरी बात, मिल्क जो है ह्यूमन सिस्टम मिल्क के लिए बनी ही नहीं है। उसको उसके माता के दूध के बाद कभी किसी की दूध की जरूरत नहीं है। वो माता जो है, जो ये फल, सब्जियां और अनाज के रूप में हमें दे रही है, यही हमारा दूध है। और तीसरी बात, उसमें एंटीबायोटिक बहुत होते हैं, क्योंकि पशुओं की जो पाचन प्रणाली है ये छोटी होती है और उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड 30 to 40 टाइम्स ज्यादा होता है। ये सब चीजें अगर हम हमारे शरीर में ले जाएंगे तो शुरू में तो कुछ मालूम नहीं रहता, क्योंकि बॉडी एडजस्ट करके हर गलत आहार से भी एडजस्ट करने का प्रयास करती है। लेकिन जब थक जाती है और कर नहीं पाती है, तब बीमारियों के रूप में वो निदर्शित होता है। तो इस तरह से मिल्क के बारे में भी, अगर एक बार माँ का दूध बंद हो जाता है तो किसी भी प्राणी को और दूध लेने की जरूरत नहीं है। अब दूध के बारे में कई डाउट्स आते हैं। अभी ऑनलाइन कई हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो उसमें भी लोग प्रश्न करते हैं। तो दूध सर्वोत्तम अगर लेना ही है हमें, तो प्लांट बेस्ड जो है इनके अच्छे, बादाम का दूध लीजिए, नारियल का दूध लीजिए, मूंगफली का दूध बनता है, तिल्ली से दूध बनता है, हर खाद्य से दूध बनता है और वो दूध ज्यादा हेल्दी होता है और नुकसान नहीं करता। तो इस तरह से दूध का सेवन भी, जो प्रोटीन के इसमें और ज्यादा कैल्शियम इसलिए लेते हैं, वो भी एक भ्रम है। कैल्शियम दूध से कई गुना ज्यादा
सब्जियों में, ग्रीन वेजिटेबल्स में है। मीठा नीम जिसे कहते हैं, उसमें 10 पत्तों में जितना कैल्शियम है उतना दूध के 1 किलो 1 गिलास में नहीं होता है। तो ये इस तरह से प्रोटीन अगर हमने सही ढंग से इनका सेवन नहीं किया तो निश्चित रूप से बीमारियां हमारे ऊपर हमें घेर सकती है, और यही हो रहा है। और मैंने जो पिछले 50 साल में अनुभव किया, प्रोटीन टोटली बंद कर दिए, फैट्स उनका टोटल बंद कर दिया। घी, तेल, फैट लेना ही है तो मूंगफली, तिल्ली इस रूप में लो, तो देखा कि निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट आए। तो मैं समझता हूं कि प्रोटीन के बारे में कि इसकी आवश्यकता कितनी है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और इसको सही ढंग से कैसा लेना है, इसके बारे में जो जानकारी मैंने दी है, वो अगर आपको अब इसके संबंधित कुछ शंकाएं हो तो मैं समझता हूं कि अब यहाँ रुक करके मैं आगे चर्चा करें इस पर। बिल्कुल। तो थैंक यू डॉक्टर गांधी, बहुत ही इंसाइटफुल था। एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा दूध की हमें जरूरत नहीं है, बट घी को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है हमारे कल्चर में कि घी इज अ ल्यूब्रिकेंट एंड सो ऑन, वो थोड़ा बहुत तो चाहिए बॉडी में फॉर थिंग्स टू मूव। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? बहुत सही क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। ल्यूब्रिकेशन के लिए हमें कोई ल्यूब्रिकेटिंग मटेरियल नहीं लेना है। शरीर हमारी एक ऐसी फैक्ट्री है, जीवित फैक्ट्री है, तो उसके अंदर अगर हम लेंगे फल तो अपने आप फैटी एसिड यानी जो ल्यूब्रिकेशन के लिए जो चाहिए फैट, वो भी बन जाता है। तो वही चीज हम दूध के बजाय बादाम से ले सकते हैं, अखरोट से ले सकते हैं, काजू से ले सकते हैं। तो दूध से तो कई तरह के दुष्प्रभाव होने की संभावना है और वो हम देख ही रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। और जैसे जैसे साइंटिफिक इस पर प्रयोग होते जा रहे हैं रुग्णों पर और लेबोरेटरी में, तब ये सामने आ रहा है। तो घी के जगह अगर लेना ही है तो हम इसका मक्खन बन सकता है, इसका दूध बन सकता है, इसका दही बन सकता है, इसका प्रयोग करें। ओके ओके। तो एक क्वेश्चन है हमारे पार्टिसिपेंट से कि आई एम 17 years old and I go to the gym, so how much protein is recommended for me? He will need 100 to 120 years according to his age and gym, 100 to 120. But he should not take extra protein because gym we are taught in gym special protein diet is given to us, so that's not required. That I have seen that many people, यहाँ तक जो कुश्तीगर होते हैं, पहलवान होते हैं या जिम में जाने वाले, अपने मसल्स अच्छी बनाने वाले होते हैं, पूरी तरह से वेजिटेरियन डाइट में रहें और लिमिटेड मात्रा में लिया, एक्सेस नहीं दिया। और ये जो बाहर के जितने भी प्रोटीन है जो आते हैं, मतलब पैकेटेड प्रोटीन है या प्रोसेस फूड के रूप में हमारे पास आते हैं, वो सब और भी ज्यादा हानिकारक है। तो ये दूध के बजाय बादाम, काजू, किशमिश, फल और सब्जियों की भरपूर मात्रा रखें तो प्रोटीन फूड की हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो जिम में अगर हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं उनको भी एनिमल प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है, वेजिटेरियन वेजिटेबल्स, फ्रूट से उनको सफिशिएंट प्रोटीन मिलेगा टू बिल्ड मसल्स? हाँ, बिल्कुल मिलता है। कहीं ऐसे मसल बिल्डर्स वगैरह पाए गए हैं कि जिन्होंने बिल्कुल नहीं लिया है प्रोटीन, दे वर कंप्लीटली वेजिटेरियन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके ओके। आई थिंक होता प्रियंका, क्या है, जब ये मसल बिल्डिंग के समय हमको आदत हो जाती है तो भोजन एक आदत है, बाद में ये आदत चलती है, तब महसूस होता है कि अरे ये गलत था। राइट। ओके, आई थिंक प्रियंका, आपको क्वेश्चन है। प्रियंका आसीजा, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, पूछिए। सर आयुर्वेद में तो बहुत रेकमेंड किया है बच्चों के लिए भी दूध, देसी गाय का दूध और घी। तो फिर सर वो सब इतने पुराने हमारे ऋषियों ने ये सब लिखा है इतनी बड़ी बड़ी संहिताओं में, तो वो सब गलत है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ कि उस वक्त क्यों हुआ और आज क्यों नहीं है।
क्यों नहीं होना चाहिए? उस वक्त हमारे पास फल सब्जियां इतनी अधिक मात्रा में नहीं थी और उस वक्त वैसे इतना कम्युनिकेशन नहीं था, तो आवागमन के साधन नहीं थे, तो जहां रहते थे वहां कुछ नहीं मिलता था, गाय भैंस से रहती थी, इसलिए दिया गया है। आयुर्वेद में तो हर तरह के जानवर के दूध के गुण धर्म दिए हैं, तो वो गलत है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर हम बंद कर लें और हमें फायदा हो जाए, जिस बीमारी के लिए अगर कोई करना चाहे, तो निश्चित रूप से हमें जो ये अभी अनुभव के आधार पर जो सही नजर आ रहा है, ये जान लेना चाहिए। उस समय में मैं बताता हूँ, मैं अभी 87 ईयर्स का हूँ, उसी जमाने का हूँ जिस जमाने में खूब गाय का दूध पीते थे। तो जहां मैं था, फल सब्जियां हमने मालूम ही नहीं थी। वो तो जैसे कोई किसी समय आती थी, महीने में एक आध बारी, ऐसा नहीं तो फल सब्जियां नहीं थी। पास में हमारे दूध और अनाज थे, तो हमारे पास जो फूड था उसी पर हमें निर्भर रहना पड़ता था। ओके। हाँ जी। सो और एक क्वेश्चन है कि my grandson is 11 years old, allergic to all nuts, so what kind of milk do you recommend? For few days he should not be given any type of nut, or because they have allergic reactions also. We should stay away from allergy. Fruits and vegetables only if we increase in his diet and decrease all other grain prepared foods, so he will be benefited. Allergy is most common with animal proteins and all proteins. Allergy की definition ही है, protein sensitivity is allergy. If we are protein sensitive, we should stop protein until our body normalizes and get properly. Okay. Okay. So there's another one which says buttermilk or chas, which is recommended, right? That is again made out of curd. So what do you suggest? That's what I have in the beginning said. There are lots of confusion and lot of misunderstanding. Buttermilk is from the same milk. It is easier to digest. That is definitely there. And if somebody is used to taking it and has no problem, there is no problem. But say as this allergic boy, he should not be given buttermilk also. And if we try the milks of you see badam, उसके बाद तुम्हारे इवन इसका तुम्हारे पीनट्स का भी मिल्क, पीनट का होता है, सभी अनाजों का होता है। तो अगर हम ये मिल्क लेते हैं तो ये उससे ज्यादा अच्छा है। इसका बटर मिल्क भी बनता है, इसका दही बनता है, इसका पनीर भी बनता है। तो फिर वो उससे हम हमारी जो एक ये है खाने की इच्छा है, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। Okay. So not necessary that we should take from animal milk butter. Right. Okay. I think Sudhir Agarwal ji, आप अपना सवाल पूछिए. Dr. Gandhi, is so nice of you listening, because I have been regularly listening Dr. Patarkini, inputs, and today you have supplemented that confusions I had, that we have to go for animal proteins. And I am very hesitant to use animal proteins like egg and all that. So I use some, dry fruits, and I find that I have no problem. Virtually, it is helping me. The, light physical exercise and light food, and eat only when absolutely necessary for you. You are hungry, then only. It has been very helpful to me in my maintaining health. Thank you very much, Dr. Gandhi and Dr. Vikram Bhai. No, that's true. That's true. Very true.
And then some people are asking that almonds are not very affordable, right, for especially middle class people. So what is an alternative? Definite, yeah. Middle class definitely can afford them. When you are not taking milk, when you are not taking any other processed food, there are so many foods. It's a whole list of foods which we should not take if you want health. So the cost will be much less than जो हमने छोड़ दिए उनसे कम होती है. और secondly, we will not need any medicine. We will not have to waste our money on medicine. So we will save from that side also. बहुत अच्छा उत्तर दिया डॉक्टर जीवनलाल। हमारी बहन है यहाँ पर पल्लवी सप्रे, वो आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं। तो पल्लवी, अगर आप हाँ. अपना अनम्यूट करेंगे अपने आप को। हाँ, हेलो, नमस्कार काका, पल्लवी हियर. हो, नमस्कार. आनंद झाला इतक्या दिवसाने, वर्षानंतर. हो, फोन करेन मी तुम्हाला नंतर. माझा क्वेश्चन होता हाँ, बोला. मेरा क्वेश्चन था कि आपने लास्ट टाइम नेचुरोपैथी में एक बताया था कि churned buttermilk is better. If you have to have buttermilk, then it should be churned natural buttermilk, right? Yeah. So that is okay, right? Churned buttermilk is okay, not the other buttermilk. No, buttermilk is always churned buttermilk. But another thing, again, it's the same thing. Instead of cow's milk, we should prepare it from nuts milk. Churning is required for buttermilk, definitely. When you churn them, it becomes easy for digestion. But if you don't have any problem, your system handles it well, then I think it's fine. We can have it. Because all of a sudden we cannot withdraw from all the things. थैंक यू डॉक्टर जीवनलाल। देखिए, एक और प्रश्न आपसे आया है यहाँ पे चैट में। श्रीराम सिंह हमारे मित्र हैं, वो पूछते हैं कि आपका डेली रूटीन और डाइट शेयर कीजिए। ये 87 साल का जो राज है वो हमको बताइए। अभी मैं बताता हूँ। एट प्रेजेंट मेरा डेली रूटीन, मैं करीब सुबह 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ। उठने के बाद अपने नित्य कर्म करने के बाद जो कुछ एक्सरसाइज है, वॉकिंग था तो अभी कोरोना के कारण बंद कर दिया। आने के बाद फिर नींबू पानी लेता हूँ और नाश्ते में कुछ नहीं लेता हूँ। 10 बजे भोजन करता हूँ। भोजन में सब्जियां, सलाद ज्यादा रहती है, दालें कम से कम प्रयोग की जाती हैं। और आफ्टरनून में इच्छा हुई तो फल लेता हूँ, नहीं तो वो भी नहीं लेता हूँ। और इवनिंग में ओनली फ्रूट्स और वेजिटेबल, सूप, सलाद। दिस इज माय डाइट। और एक देखिए प्रश्न था यहाँ पर, इन बिटवीन आई अंडरगो फास्ट आल्सो। Whenever I get an opportunity, then I will take it as I will stop taking anything. Either I will go on fruit juices or on water. Fantastic. 9 to 10 days, many times I have done it, and I have found no problem. Once you are convinced. और देखिए, इतनी आयु के बाद में भी चेहरे पर जो there is a glow on the face, so that is what is the proof, isn't it? यहाँ पे और एक प्रश्न पूछा है कि कैन वी हैव ए लिस्ट ऑफ बेस्ट प्रोटीन फूड इन डेली डाइट, कि डेली हम जो यूज कर सकते हैं वो प्रोटीन कौन से होने चाहिए, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? If we are not okay, that's good thing, good question. If not for sickness or it is for normal healthy people, then all pulses are very good. मूंग, चना, और उसके बाद तुअर, उसके बाद तुम्हारा सारे के सारे दालें जो हैं, सब के सब, और बीन्स जितने हैं, दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन। तो जितनी भी दालें हैं वो लेनी चाहिए, लेकिन दालों को छिलके सहित लेना चाहिए। छिलके में मिनरल्स होते हैं। नेचर ने क्या किया है, हर फल सब्जियों में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन ऐसा कर रखा है कि वो प्रोटीन उससे अगर ज्यादा होगा तो उसको कैसे एडजस्ट करके डाइजेस्ट करना है, तो अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए अदल बदल करते हुए सभी दालों का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद बादाम और नट्स का तो प्रयोग सबसे उत्तम है। नट्स बेस्ट
सोर्स ऑफ प्रोटीन। लेकिन नट्स जो है ये गागर में सागर वाली उगती है, बहुत थोड़े से लेने चाहिए क्योंकि ये बहुत पचने में भी हेवी होते हैं और इसकी फिर जरूरत हमको इतनी नहीं होने से अल्प मात्रा में हर एक ने अपने अपने अनुभव से इसको तय करना चाहिए। करेक्ट, थैंक यू। ये मेरा भी अनुभव यही है। मैं थोड़ा मेरा अनुभव शेयर करना चाहूँगा। और मैंने जो केमिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा ली है उसके हिसाब से जो मैंने समझा है मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए, प्रोटीन ऐसी वस्तु है कि जो शरीर में स्टोर नहीं की जा सकती। मसल में स्टोर होती है, लेकिन मसल बिल्ड करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत करते हैं, आप जिम में जाते हैं, आप व्यायाम करते हैं, तो आपके लिए प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होगी। अगर आप प्रोटीन खाते हैं और उसको मसल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा कि उसको आपका शरीर जो है फेंकने पर मजबूर हो जाएगा। तो प्रोटीन का क्या होता है कि एक्सेस प्रोटीन को, प्रोटीन में दो भाग होते हैं, एक कार्बन होता है और एक नाइट्रोजन होता है। वो नाइट्रोजन को काटा जाता है और जो कार्बन का भाग होता है उसको ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के तरह ही हमारा शरीर उसको ग्रहण करता है। और अगर हमें उसकी आवश्यकता है तो हम उसको उपयोग में लाएंगे, और अगर नहीं है तो उसको फैट में कन्वर्ट किया जाएगा, उससे फैट बनेगा और वो फैट स्टोर हो जाएगा। और जो नाइट्रोजन कटा हुआ है उसको हमारी किडनी को फेंकना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के अंदर होता है। तो हमने अगर अपनी आवश्यकता से अधिक प्रोटीन खाया तो हमारी किडनी पर ज़्यादा प्रेशर आता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं, इसके बारे में रिसर्च हो चुका है अमेरिका में। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं शारीरिक श्रम कर रहा हूँ, तो मुझे प्रोटीन की आवश्यकता होगी और मुझे प्रोटीन खाना पड़ेगा। लेकिन मैंने आवश्यकता से अधिक अगर खाया तो फिर वो मेरे शरीर के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये हमने सबने समझना चाहिए। अब देखिए कि हर आदमी कितनी मेहनत करता है, दिन भर कितनी दौड़ धूप करता है और उनको कितना प्रोटीन चाहिए, ये कोई डॉक्टर आपको लिख करके नहीं दे सकता है। आपको ये अपने आप समझना होता है। तो कैसे समझेंगे हम कि हमें भूख लगती है? तो हमें जब भूख लगती है तो हमने खाना खाना चाहिए, और जब हमारा पेट आधा भर जाता है तो हमें डकार आती है, हल्की सी डकार आती है। तो उस समय या उस समय से पहले हमको रुक जाना है। ये अगर जीवन प्रणाली हम लोग अपनाएंगे तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं हो सकता है। इसके बारे में डॉक्टर गांधी ने 55-60 साल से अपने आप पर प्रयोग करके सिद्ध किया है, और उनकी प्रेरणा से हमने भी इसको हमारे जीवन में ला करके अपने अनुभव में सिद्ध किया है। इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंटली आपको बता सकते हैं कि हमें इस पर पूरा विश्वास भी है और अनुभव सिद्ध विश्वास है। ऐसा नहीं कि हमने अंधविश्वास कर लिया इस पर। हमने ये सारे नियम हमारे जीवन में उतारे हैं और इनका प्रयोग हमारे शरीर पर किया है और मन पर किया है, और तब जा करके हमारी ये निष्ठा जो है ये दृढ़ हुई है। ये है इसके पीछे का रहस्य। सो डॉक्टर गांधी ने हमें जितना अभी तक मार्गदर्शन किया है उससे हमने यही सीखना है। तो ऐसा है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। इट इज सेड दैट कार्ब्स गेट कन्वर्टेड इनटू फैट्स, सो रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एंड इंक्रीज प्रोटीन। ऐसा नो नहीं है। अभी जो समझाया नो 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 वही नो था कि एब्सोल्युटली प्रोटीन नो। ज्यादा खाओगे तो नाइट्रोजन काटना हाँ, पड़ेगा और किडनी पर प्रेशर आएगा, ऐसा होगा। किडनी किडनी पर आएगा और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होने से कार्डियक प्रेशर भी बढ़ता है। तो करेक्ट। ऐसा नहीं है, बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए। देखिए, यही सब सिखाने के लिए हम सत्व में एक 3 महीने का प्रोग्राम करते हैं। तो उसमें लोग 3 महीना तक हमारे साथ आते हैं। उनको हम हर एक आदमी को उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका रिक्वायरमेंट है, उनके जो मेडिसिन हैं या उनकी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, उसके हिसाब से हम उनको स्पेसिफिक डाइट रिकमेंड करते हैं। हर एक आदमी के लिए अलग होता है। इट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीबॉडी। हम यहाँ पर हमारे वेबिनार में या इन प्रोग्राम में जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनको ही ले सकते हैं या उन्हीं को बता सकते हैं। आपके जीवन में स्पेसिफिकली वो कैसा आना चाहिए उसके लिए आपको ये हमारे साथ रहना होगा 2-3 महीना। तो उसमें क्या होता है कि हम आपको ये सारा सिखाएंगे, ये सारा जो अनुशासन है वो आपके जीवन में आएगा। केवल आहार का ही नहीं है, पर आहार के साथ योग, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी बातें हम आपको हमारे अनुभव से शेयर करते हैं। हम आपको सिखाते हैं ऐसा नहीं बोलेंगे।
हमने जो अनुभव किया है वही अनुभव हम आपके साथ शेयर करते हैं, और आप अपने जीवन में भी उसका प्रयोग कीजिए और फिर आपको समझेगा। अब यहाँ पे देखिए और एक प्रश्न आया था कि हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स अमेरिका में होते हैं। हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स से बचकर आप इस पृथ्वी से कहीं भागकर नहीं जा सकते, आपको चंद्रमा पर जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड से छुटकारा पाओगे। लेकिन गुड न्यूज ये है, अच्छी वार्ता यह है कि हमारे शरीर में इस प्रकार की बुद्धि होती है। आवर बॉडी हैज द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस to discriminate between what is good for the body and what is not good for the body. That is natural intelligence. Therefore, we should be very grateful to nature. We are alive in spite of ourselves. If we had been given the power to control all of our body and mind and everything, we would have killed ourselves within a few seconds. So, in spite of whatever we eat, the body is capable of discriminating between what is good for the body and what is not bad for the body. This natural intelligence, this natural sense of discrimination has to be kept alive. This natural sense of intelligence and discrimination is kept alive by not indulging. इसको कहते हैं प्रत्याहार या ब्रह्मचर्य। ये हमारे योग शास्त्र में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। इसको अगर हम नहीं समझेंगे और इसका प्रयोग हम हमारे जीवन में नहीं करेंगे तो फिर भगवान भी हमको नहीं बचा सकते। तो ऐसा है। सो वी हैव टू कंज्यूम ओनली व्हाट वी नीड, दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। इफ वी डू नॉट फॉलो दिस फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, then we will be afflicted by all kinds of diseases. And if we follow the law of nature, then the herbicides and pesticides will not bother us. Our body is fully capable of getting rid of them. Believe me, I don't eat organic food. I just eat whatever food is cheapest available in the grocery store. That I buy. Cheapest means I buy the cheapest fruits, the cheapest vegetables, the cheapest nuts, and the cheapest grain. And I eat them all in natural form, only to the extent they are necessary, only when I'm hungry, and I get up or I stop at the first burp. If we follow this rule, if we all follow this rule, then don't worry about the herbicide pesticide. I'm not saying that you should eat things without washing. Okay, you wash them. If you are afraid, then you wash them in potassium permanganate or in warm water, or do whatever you want. Whatever will keep your mind calm. There is no such fear. There is no need for such fear if we eat only when hungry. See, hunger means that our body is healthy and it is ready to receive food. We should feed our body only when it is hungry. If we feed our body even the best kind of food when we are not hungry, then that food will get converted into poison. Remember that at all times. Don't eat unless you are hungry. If you follow this one rule in your life, then what to eat, how much to eat, all of those things will become apparent to you. So Neetu Arora is here and she has been waiting patiently for me to finish. Neetu, why don't you ask your question, please? Go ahead. यस यस। सो अभी जैसे आप लोगों का बेसिक फंडा भी यही है कि रो मैक्सिमम खाना है, कुक्ड फूड कम खाना है, ठीक है, एंड आई एम आल्सो फॉलोइंग। बट जैसे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा में एक बोलते हैं कि जिनको वात दोष थोड़ा सा रहता है उनको कच्चा नहीं खाना चाहिए, बराबर उनको है। पका के खाना चाहिए। तो आपका उस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल बराबर है, आपने जो कहा वो बिल्कुल बराबर है। और अगर वात दोष आपको है तो आपने नहीं खाना चाहिए। तो जिसको वात दोष है, जिसके ये 3 वात पित्त कफ बैलेंस में नहीं है, उन्होंने ये 100% रॉ डाइट के पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो बैलेंस में आता है जब हम ये पहला नियम अपने जीवन में उतारते हैं कि मुझे जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ओके। देखो, you have been with us, you have attended our program, and you have been a great role model for all of us. Not only diet, but also you do great yogasan. Your body is wonderfully healthy and very flexible. ऐसा ही सबका होना चाहिए। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। जैसे एक दिन मैंने जब ये सेकंड डोज लिया था हमारे वैक्सीन का, उसके बाद में मुझे एक दिन थोड़ा ठीक नहीं लगा था। तो उस दिन आई डिड नॉट इंसिस्ट ऑन ईटिंग रॉ फूड। दैट डे आई एट खिचड़ी। इट्स ओके। ऐसा नहीं है, ये रॉ फूड इज नॉट ए रिलीजन। वी हैव टू ईट फूड बेस्ड ऑन आवर ओन नीड। ओके। देखिए, डॉक्टर गांधी या फिर हमने जो प्रयोग किए हैं हमारे शरीर पर या हमारे मन पर, ये अनेक सालों के प्रयोग के बाद हमें जो हमारे बॉडी के लिए ठीक है उसके हिसाब से किए। दिस मे नॉट वर्क फॉर एवरीबॉडी, दैट इज व्हाई दिस होल गाइडेंस प्रोग्राम इज देयर, नो, फॉर 90 days। ऐसा हम वेबिनार में सुन लेंगे और बिना सोचे समझे अगर हमारे शरीर पर प्रयोग करेंगे और उससे अगर कोई
हमें हानि हो जाती है तो फिर इसके लिए किसका है उत्तरदायित्व, ऐसा है। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि इसको यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस अंडर गाइडेंस ऑफ समबडी हु हैज एक्सपीरियंस्ड। सो हमारे साथ डॉक्टर गांधी जैसे जिनको 55-60 साल का एक्सपीरियंस है वो हैं, हम तो उनके सामने बिल्कुल बच्चे हैं, लेकिन हमने जो सीखा है और हमारा जो अनुभव है वही हम आपको बताएंगे। हम ऐसा नहीं बताएंगे कि जो हमने पुस्तक में पढ़ा है, ये हमने सारा अपने आप पर प्रयोग करके सिद्ध किया है। समीर जी हमारे यहाँ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो समीर जी आप पूछिए। गुड इवनिंग डॉक्टर जीवनलाल गांधी। समीर, I cannot hear you very well. Can you come close to your phone? आता ऐकू येते का? Very low, very low. आता? Now it is much better. Go ahead, please. डॉक्टर जीवनलाल गांधी ये प्रश्न है। पिछले 200-400 साल से जो जीवन चला आ रहा है भारत में, वो पिछले कुछ दशकों से एकदम सा बदल गया है। जैसे कोई We can still not hear you, Samir. Your voice is breaking up, and you are far away from the phone. I have no idea what is wrong. You might want to write it on the chat. कट के समीर आप कट आ रहा है। चैट पे लिख सकते हैं क्वेश्चन, हम लोग रीड करेंगे। आता है तो का? Yeah, it is better. Go ahead now. तर ते पिछले 200-400 साल से जो जीवन चला रहा है हिंदुस्तान में, वो कई दशकों से एकदम बदल गया है। जैसे कोई पैदा होता है। It seems like, Samir, it seems like your microphone is covered by something and your voice is muffled. That is what is happening. Yeah, so Samir, try putting it on the chat. Meanwhile, we'll move on to the next question. So I think there was a question on whey protein for Dr. Gandhi. What do you think about whey protein? Weight reduction? नहीं, whey protein. Whey जो होता है ना, the whey that comes out of the milk, that it's the same answer. Dr. Gandhi can tell. No. Whey. When I say okay, whey, okay, fine. Whey, if you made it from nuts, it is fine. But when what you are talking about the whey from regular cow's milk, which we have. It has the same ingredients in it. Some are listen, that's all. दूसरा एक और मैं प्रोटीन के बारे में बोलना चाह रहा था कि देखिए, प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर में जाकर के, तो प्रोटीन गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स. ओके, those individual amino acids are then reconstituted into our body's protein or our enzymes or whatever. Now, when we eat either cooked protein or animal protein, then all of that protein needs to be broken down into individual amino acids, and then it has to be reconstituted into the proteins we require. That is one thing. Secondly, if we take natural food, if we take natural protein, the way we are getting from either soaked nuts or sprouts or even vegetables and fruits will have a little bit of protein. Every living entity has a little bit of protein. So that protein, when it is taken naturally in its natural form, it integrates into our system much better. See, of course it is important how much protein we consume, but even more important than that is how much of that protein is actually integrated and how easily it is integrated into our system. So it has been our experience, and it has been the experience of all of us, or many of us, that when you eat natural protein, then that protein gets integrated into our system much more easily. The higher we go on the food chain, the more difficult it becomes for us to integrate that protein into our system. That has been the experience. Okay. So, and also each organism will create the protein for its requirement. Okay, so when we get the protein directly from some other animal, just say, there is a misconception, and it's not a misconception, it is the truth. You will get complete protein, complete amino acids from a meat-based or animal protein-based diet. About that, there is no doubt, but that protein has to be broken down. And then that animal has not created that protein so that it will be sacrificed and then human beings will eat it. That has not been that animal's intention. Okay. No animal intends to get killed. Even the plant doesn't intend to get killed. Okay, every organism has the same natural urge
to survive and to live and to protect itself. It's called the self-preservation instinct. Every living entity has that. In nature, the best food for us, we did an entire program on ahimsa. What is the best diet that nature provides us and wants to give us? That is the ripe seasonal fruit. As soon as you touch the fruit, the tree is actually wanting you to get it, wanting you to have it so that you can eat the fruit and then throw the seed somewhere else so that the plant can propagate. That is nature's way of feeding us. That is how nature has taught for us to eat. But then somehow we have not really understood these laws of nature. So that's why we are killing animals and we are, unnecessarily getting protein from elsewhere. See, the dals, the pulses we eat, moong dal, chana dal, or any other dal, that is the seed of that plant. That seed is produced by the plant in, thousands or millions numbers. See, each plant of moong dal will give thousands of seeds of moong dal. So that is the product nature wants us to have. Okay, so if we have such food which nature is actually giving it to us, giving us willingly, that is the way to eat, not by unnecessarily cutting an animal or even cutting a tree for that matter. So whatever is available in nature, mainly fruits and seeds, that should be the majority of our meal. Even I would say leaves, we should eat. If the leaves happen to be the end product of the plant, then it's okay. And then by eating leaves, you are not killing the plant. The plant will still propagate. Right? So that is why we insist, even in the Gita, it says Patram, Pushpam, Phalam, Toyam. These are the 4 things that Bhagwan or the Vaishwanar in our digestive fire, or Vaishwanar is the digestive fire. Our stomach is basically considered to be, a yagya or a sacrificial fire in which we add ahuti called the anna. That is our spiritual tradition. So if we eat in this manner, if we treat food in this manner, if we treat food reverentially, if we eat only when we are hungry and only to the extent we need it, then all of these questions are automatically answered. Think about these things. If you want, the recording of this program will be available on our website. Also take a look at what we do as an initiative called Sattva, sattv.life, sattva.life. Look at that. Plenty of people have come to our programs and they have benefited tremendously out of this. So we are delighted to have Dr. Gandhi as an inspiration for us, and we try to walk on the path he has shown us. So thank you very much. Any other questions? Couple of more questions. So one is, what is the quantity of lentils or dals that we should have every day? Dr. Gandhi, do you want to answer that? Yeah, sure. One thing, dal should be with the skin, not polish. And quantity, as much as you want, you can have it. But remember, you don't need it to have daily. Body will adjust it. If you take little more, doesn't matter. Body has that much accommodation power, so body will take care of. Okay, and the related question is, what is the best way to cook dals? Is pressure cooking okay? Actually, it is good to cook in the pot. The best way is that. Right, not pressure cooking actually takes away the nutrients. Pressure cooking is okay. Pressure cooking is okay now because it has become a part of our kitchen. So we cannot throw it away. I will share my experience on this cooking business also. So when we cook the dal, what I have tried to do, and I'll give you the difference between both because I have done the experiment. So when we take the dal, we soak it overnight. For example, moong dal, we soak it overnight, and then next morning we try to cook it in the open pot. Then while cooking, there is a foam on the top. See, what happens is, I'll explain to you again how the seed is germinated. If you keep the seed in the store for a long time, it will not spoil. Okay, because the seed covering has certain toxic material that protects the seed. Okay, so even if we eat a seed and if we don't chew it, then it doesn't get digested. It goes through our system just as it is. That is nature's way of propagating the tree. All right, the tree doesn't have any legs to walk.
So therefore the tree wants us to eat, and some of the seeds will not be chewed up and will not be digested. So those trees will be excreted through our feces, and wherever we excrete them, of course these days we go to the toilet and then the sewage is cleaned up in the sewage treatment plant. That is a different story, but nature's design is like this. So when we eat the fruit or the seed, then some of the seeds will be excreted. So those seeds, wherever they land on the land, that's where the seed will come up, the tree will come up. So that is the way for the tree to propagate itself. That is nature's way. Okay. Now when this seed is soaked, then the seed thinks that it is time to germinate. At that time, what it does, it will release the toxins from the seed cover into the water. So what we need to do is to soak it overnight and throw all the water, wash the dal completely, and then start cooking it, boiling it in the open pot. Then that dal will release some surfactants. Those are not good for us either. So they will come up as a foam on top of the surface. So decant that foam, throw it away. When the dal is completely cooked, that's when, if you want to make a khichdi, you can add some rice, or even before rice takes hardly 5 to 10 minutes to cook. So 5 to 10 minutes before the dal is completely cooked, you can add rice, and then the whole thing cooks very nicely, all in open pot. Okay. If there is excess water, you can throw it away, or if the water is just right, then at the end of it, you cover it lightly with a lid. That's all. There is no need to pressure cook. When we pressure cook it, then the proteins within the dal and the rice will get denatured. Okay. And then it is much harder for us to digest that entire food. I have done the experiment both ways. So when you cook it without pressure cooker, when you cook it in an open pot, then that food is much tastier and much more beneficial for us, much easier for us to digest. You get much more juice out of it than if you cook it in a pressure cooker. In the pressure cooker, you will lose a lot of nutritional value. So you'll end up eating a lot of food, but you'll get only little benefit out of it. So it makes it more inefficient. So that's my experience, and I'm glad to have shared it with you. Priyanka is wanting to ask another question. So let me take, that will be the last question because we are almost out of time. Go ahead, please, Priyanka. So doctor, there has to be no lid on the pot, right? Correct. Initially, until it is almost completely cooked, and then at the end you can put the lid on it and then take it off the cooker or burner, and then let the steam cool down. That's all. So in the form of steam, the nutrients are not evaporating, correct? No. See, whatever the nutrients are not evaporated. See, only the volatile matter gets evaporated. Okay. Okay. Nutrients don't go away. Nutrients are soluble in water, so they are going to remain in water. But then, if there are pesticides, if there are herbicides, right, they will get thrown away because they are volatile. Okay, and generally it is said that the water that is used for soaking should be used, but No. You should throw it away. I'm saying you should throw it away because when you are soaking it, the seed has released the toxic material in the seed cover. That has to be thrown away. And sir, what about the dals which are broken dals? That doesn't matter. Even broken dal, I have done the same experiment. So broken dal you soak overnight, then in the morning it will swell, right? Right, Then, but generally like yellow moong, it requires very less time to soak. So still it should be soaked overnight, you say? It doesn't matter. Soak it for 3-4 hours. Whatever you do the experiment. This is not a big rocket science. No, sir, I've been doing it for a long time, but throwing away the water, there are so many opinions about it that a person gets confused. Right. So okay, so let's do one thing. If it is already broken down, if it is the yellow moong dal, then don't throw the water away. But when you cook, there will still be foam. So that foam you should throw away. Yes, that I'm doing. I've been doing it. Okay, so thank you, sir. So because if you eat the green moong dal, then whatever toxins are released by the moong dal, those you should throw away in the morning. If it is already cleaned up and if it is yellow moong dal, then if you don't throw it away, that's okay too. I mean, I throw it away, it doesn't matter. So this applies to rajma, chole, chane, everything. Everything, right? All seeds, all seeds. Even I soak peanuts and I soak almonds, I soak walnuts, all of them I soak overnight and then I eat them in the morning. And you should eat, as Dr. Gandhi said, you should not overeat these seeds or dals. You should eat them in smaller quantities. Majority of your food should be
natural vegetables and fruits. Sir, should we eat kulith dal in Maharashtra? हा, कोळीत दाल खाऊ शकतो ना, काय प्रॉब्लेम आहे? काय Yeah, हरकत नाही. पण ती yeah. भिजवायची ती. डॉक्टर गांधी काय म्हणतात सांगा. नाही बरोबर आहे, कुलीतही चालेल म्हटलं, उलट चांगला आहे, त्याच्यात काही गुण जास्त आहे. Wonderful. Right. So And anyway, the great. last- It has been a great meeting so far. Any other question? Last question. Yeah, Sameer has posted his question. So I think what he's saying is these days there's a lot of pressure on children to compete and get other things and then earn a living and all that. So, and also India is now structured according to Western society. So in these situations, how to avoid eating animal protein? Dr. Gandhi, you want to take that? No, Vikram will answer it. All right. Okay. So let me attempt to answer that. You see, Otherwise, animal protein is not sacrosanct. Animal protein is not mandatory. Animal protein खाने से ही हमारी सेहत बढ़ेगी, अच्छी रहेगी, ये नियम नहीं है बाबा. In fact, last year or the year before that, there was a movie made on all these athletes, all these superstars, bodybuilders, weightlifters, tennis players, a cricket player. Our Virat Kohli is a total vegan. He does not take any animal product. And is he not competing? He is the world's best cricketer. So don't be under that impression that one has to eat animal protein to go ahead in life. No, in fact, that is a wrong assumption. That's not right. Even in the West, people have done all kinds of experiments now and they have proven. I think there is the movie, what is the name, Pooja? Do you remember the name of the movie in which all these athletes were shown? I think 2-3 years ago it came out. Not Avengers, I forget. No, it's Game Changers. Game Changers, yeah, Game Changers. So Samir, तो Game Changers नावाचा सिनेमा बघ, त्याच्यानंतर हे सगळे प्रश्न आपले विरघळून जाते. No problem. All right, wonderful. So great to see all of you. Thank you for spending an hour of your. एक दोन शब्द जरूर अवश्य बोला डॉक्टर गांधी. हा, समीरना मी हे सांगेल, मुलांना याच्यापासून आपल्याला परावृत्त करायचं असेल तर आपण स्वतः हे नियम फॉलो केले तर मुलं आपोआप दूर होतात. हल्ली आम्ही एक कार्यक्रम घेतोय ऑनलाईन, डायबिटीज रिव्हर्सल नावाने, परंतु ते डायबिटीज नावाचंच आहे, सर्वच त्यांनी फायदे होतात. तर तशाच प्रकारचा जो कार्यक्रम आहे डॉक्टर गांधी, एक्झॅक्टली सेम थिंग वी डू. इनफॅक्ट समीर हॅज बीन ए बेनिफिशियरी ऑफ द सत्व कार्यक्रम, सो ही कम्स टू is a part of our Sattva family. Everybody is welcome to go to sattva.live and come to us. मग मुलांना काही येणे करता आपोआपच हळू आपल्याला पाहून शिकतील. Exactly. So thank you very much. Wonderful. Thanks for spending an hour of your Sunday evening with us. We look forward to seeing you again in the next couple of weeks. Have a wonderful rest of your evening. My pleasure. Namaste.